Hello everyone. Today we are going to discuss about binary arithmetic. In this video you will learn how to perform binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division. So let's start. First of all we'll discuss about binary addition. Before doing binary addition you must know that what are the various rules for binary addition. There are rules which are 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 0 with carry over 1, 1 plus 1 is equal to 1 with carry over 1. ओके, सो ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी हमने बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल दैट हाउ टू परफॉर्म बाइनरी एडिशन. यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं. कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास? 1110 एंड 111. ओके, सो जो पहला नंबर है उसमें हमारे पास 4 बिट्स हैं और जो दूसरा नंबर है उसमें हमारे पास 3 बिट्स हैं. तो नंबर ऑफ़ बिट्स इक्वल करने के लिए हम जो छोटा नंबर है जिसमें नंबर ऑफ़ बिट्स कम है उसके आगे 0 लगा देंगे. ओके, सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो नंबर हैं वो क्या बन गए हैं. 1110 एंड 0111. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट. Okay, so let's see here 1110 and 0111. Okay, so 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 plus 1 is 1 with carry 1, 1 plus 1 plus 0 is 0 with carry 1 and लास्ट में हम 1 को एज इट इज डाल देंगे. So this is the way that how you get the answer. Okay, next is अब इसमें देखिए आप ध्यान से कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है और ये कौन से नंबर हैं हमारे पास इसमें इंटीजर पोर्शन भी है और फ्रैक्शन पोर्शन भी है. ओके, तो फ्रैक्शन वाले को आप अलग से मतलब कर सकते हैं यहाँ पर. तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसमें आप देखिए कि क्या है हमारे पास, that is 0.01 and 0.001. okay, so put 0 here. फ्रैक्शन वाले जब फ्रैक्शन के राइट साइड पे आई मीन डॉट के जो राइट साइड पे नंबर होता है अगर उसके डिजिट्स हमने नंबर ऑफ बिट्स अगर इक्वल करने हैं तो हमें उसके राइट साइड पे जो है वो 0 लगाना है. ओके, सो 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1 and that is 0. So this is the answer of your fraction part. Okay, now here 1110 and 1010. So this is your integer part. आप देखिए दोनों नंबर्स में integer part. So 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0 with carry 1. So 1 plus 1 is 0 plus 0 is 0 with carry 1 and 1 plus 1 plus 1 is 1 with carry 1. So write 1 as it is. Okay, so this is the answer. So what is the answer? 11000 dot 011. So this is your answer. Okay, next is binary subtraction. So how to perform binary subtraction? You must know the rule, that is 0 minus 0 is equal to 0, 1 minus 0 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0, 0 minus 1 is equal to 1 with borrow 1 from the next position. Okay, so let's see how to perform it. अब इसमें आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अब subtract 011 from 101. So हमारे पास 101 में से आपको 011 को subtract करना है. ओके, सो 1 में से 1 गया 0, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, so you need to borrow. ठीक है, अब हमें जो उसके लेफ्ट पे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से आपको जो बिट दी हुई है आपने उसको उससे बोरो करना है. अब इससे क्या दिया है, 1 दिया था, तो 1 में से 1 अगर उस तरफ चला जाएगा तो इट विल बिकम 0 और ये क्या बन गया, 0 था, अब इसने 1 जो बोरो कर लिया तो ये बन गया 10. सो 10 मीन्स 2, सो 2 minus 1 is 1, 10 minus 1 is 1 and 0 minus 0 is 0. This is the how you get the answer. Okay,
Next is binary multiplication. So basic rules of binary multiplication are as follows, that are 0 into 0 is equal to 0, 0 multiplied by 1 is equal to 0, 1 multiplied by 0 is equal to 0, 1 multiplied by 1 is equal to 1. That means you get 1 only when 1 multiplied by 1. That means both the bits are 1, only then you will get 1 as a answer. Okay. So let's see how to perform it. अब आप इसमें देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, 111 है और 101 बिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है. तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में करते हो ना, सेम वैसे ही करना है. ओके. सो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर सारी 1 बिट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 111. देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, 0 को ऊपर तीनों से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग is 0, then 2, then 1 is 1 1 1. Now add them, that is 1 1 1 plus 1 is 0, carry 1, then 0, carry 1, then 0, then 1. So write 1 as it is. Okay. So what is the answer that we get? 1 0 0 0 1 1. Okay, you can see here. Next is similarly, if you have like this, I mean fraction portion also, like 1.01. okay, 1.11. सो अब देखो, इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो जैसे इन्होंने किया हुआ है, और बाद में आप क्या करो, उसका जो पॉइंट है, डेसिमल है, जो डॉट है, उसको एडजस्ट कर दो. उसको कैसे एडजस्ट करना है, देख लो पहले नंबर में कितने जो बिट्स हैं वो आफ्टर आई मीन डेसिमल पॉइंट है, आई मीन फ्रैक्शनल पोर्शन में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, और दूसरे वाले में भी देख लो फ्रैक्शनल पोर्शन में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं. तो यहाँ पर पहले वाले में भी 2 थे, 0 1, और दूसरे वाले में भी 2 है, दैट इज़ 1 1. सो टोटल कितने हुए हमारे पास, 4. ओके. सो यहाँ पर अब जो हमारे पास, अगर आप देखो तो आंसर क्या आया था हमारे पास आंसर आया है 1 0 1 1 0 1 1. ओके. सो हमारे पास 4 बिट्स के बाद हमने जो उसका पॉइंट है उसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर दो पॉइंट को. सो 101.1011 इज योर आंसर. ओके. सो इट्स वेरी इजी. Next is binary division. Rules to perform binary division are as follows. 0 divided by 1 is 0. 1 divided by 1 is 1. 1 divided by 0 is not defined. ओके. तो इसमें हमने दो ही चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है. लेट्स सी हाउ टू परफॉर्म इट. अब देखिए अब इसमें हमने क्या लेना है, अब आती है सबको हमें डिवीजन करनी है ना. तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बिट्स कब हमारे इक्वल हो गए, जब इक्वल हो गए तभी हमने उसके नीचे नंबर ऑफ बिट्स हैं, तब 1 पे जाना है अगर इक्वल है, अगर लेस है तो 0 पे जाना है. दो चीज़ें ध्यान रखना. जैसे कि अब पहली बारे में हमने 101 1 किया, तो हमारे पास क्या आया, 101 है ना. तो हमने किसके नीचे लिखा, 110 के नीचे आपने 101 लिखा. आप इसको माइनस करो, अब ये बोरो करेगा तो ये 10 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया. तो 10 में से 1 गया तो 1 आ गया, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, 0 आ गया. आप देखिए क्या आया, यहाँ पे 1 आया है ना. अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 था. अब 1 था तो ऊपर से क्या उतारा, 0 उतारा. ठीक है. अभी भी हमारे पास यहाँ देखिए, आप कितने हमें चाहिए थे, 3 बिट्स चाहिए थे, लेकिन अभी 2 बिट्स हैं, इसीलिए हमने क्या किया, 101 जीरोज आप पे लिया, तो 0 आ गया, इसके नीचे 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, 10 आ गया. फिर ऊपर से उतारा, अब ऊपर से क्या उतारा हमने, 1 उतारा है ना. 1 उतारा, अब वो 1 पे चला जाएगा. अब 101 1 जा क्या आ गया, 101, और माइनस किया तो 0 आ गया. सो 101 इज योर क्वेश्चन. ओके. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें भी सेम उसी तरह से हमने काम करना है. अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 110 सबसे पहले क्या लिया, 110 1 जा 110. हाँ. सो 110 में से 110 गया तो 0 आ गया. अब ऊपर से क्या उतारा, 1. अब ऊपर से 1 था तो वो 0 से 0 जा पे गया. तो सेकेंड टाइम हमने क्या लिया,
1 1 0 0 क्या आ गया, 0 आ गया। सो 1 के नीचे 0 आया तो फिर 1 माइनस 0 इज़ 1। ऊपर से फिर एक और 1 उतारा तो क्या आ गया, 1 1 आ गया। सो फिर अगेन हमने 0 ज़ा लिया, 1 1 1 0 ज़ा 1 1 0 0 ज़ा 0। अब फिर 0 लिया तो 1 आ गया, ऊपर से फिर एक और 1 उतारा। तो अब देखो हमारे पास 3 बिट्स पूरे हो गए ना। अब हमें 3 बिट्स चाहिए तो अब हम 1 पे ले लेंगे। ओके, तो 1 1 0 1 ज़ा क्या आ गया, 1 1 0। सो अब हमारे पास लास्ट में क्या था, 1 1 1। अगर आप यहाँ देखो तो 1 1 0, आप माइनस करो इसको। 1 माइनस 0 इज़ 1 माइनस 0 इज़ 1 और 0 0। सो अब ऊपर से आप देखिए कुछ भी उतारने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 रहेगा। और जो 1 1 0 1 0 0 1 है जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज योर आंसर। ओके, प्रैक्टिस सेशन ऑफ कोर्स, अगर आपको हमारा पिछला पढ़ाया हुआ है जिसमें हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन के बारे में बताया है, अगर आपको वो समझ आया तो आप ज़रूर इनको ट्राई करें। और इनको ट्राई करने के बाद आप हमें जो आंसर्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं टू नो योर प्रोग्रेस। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमें मालूम पड़ता है कि हमें कितना समझ आया या कितना नहीं समझ आया, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, और जो ये लास्ट वाला, फर्स्ट वाले में आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सेकंड वाले में आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, थर्ड वाले में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वाले में आपको डिवाइड परफॉर्म करना है। ओके, so you must reply. Thank you everyone. If you like our video, please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.